नमस्कार दोस्तों। अ, कैसे हैं आप सब? होप ऑल ऑफ यू आर वेल। नाउअडेज समटाइम्स एक ऐसा फ्रेज बन गया है, बिफोर कोरोना एंड आफ्टर कोरोना। सो आफ्टर कोरोना तो पता नहीं, बट एक समय हुआ करता था जब बिफोर कोरोना था। तो बात उस समय की है, जब हम एक सिटी में रहते थे और मेरे पड़ोस में एक बड़ी यंग सी और एक अच्छी सी मदर थी, जिनकी 2 बच्चियां थी, एक 7th स्टैंडर्ड में और एक 4th स्टैंडर्ड में। उनका टिपिकली दिन कैसे शुरू होता था, तो सुबह शी यूज्ड टू गेट हर किड्स रेडी, ड्रॉप करने जाती थी बस तक। उसके बाद घर आती थी एंड देन हर डे यूज्ड टू स्टार्ट। She was also working, so she used to work, come back, then take her kids again, drop one of the kids to one of the classes, second kid to second class. She would come home again with them, and again in the evening something used to happen, something or the other. तो आई थिंक आप रिलेट कर सकते हैं इस स्टोरी के साथ, उस यंग मदर की स्टोरी के साथ कि हम सबकी लाइफ में शायद ऐसा ही होता है। ये स्टोरी सुनाने का रीजन फ्रेंड्स एक है कि आज मैं जब ये व्हाट्सएप नंबर अपना फ्लैश कर रही थी कल, और आज दिन भर मुझे जब क्वेश्चंस आए, तो एक बहुत पुरानी मेरी हैं सहयोगी, उनकी बेटी का मैंने साइकोमेट्रिक किया था, साइकोमेट्रिक एनालिसिस, व्हेन शी वाज इन 9th स्टैंडर्ड। उन्होंने एक क्वेश्चन ड्रॉप किया एंड शी सेड कि you are doing everything for regarding psychometric from 8th standard onwards. What about small kids? Do we have to do anything about them? So I thought for some moment, and then immediately I referred to this example of a mother who was living beside me, who was my neighbor. So अब ये जो छोटे बच्चे हैं, इनके साथ हम क्या कर सकते हैं? तो अब हम, इनकी जो एज होती है वो ट्रायल एंड एरर की होती है, meaning we just want to expose them. We always say that we just want to expose them to multiple options so that they can pick and choose the best possible option for them. This multiple option, multiple intelligence is called as a multiple intelligence theory, and this multiple intelligence theory was put forth by Howard Gardner. अभी ये जो मल्टीपल इंटेलिजेंसेस हैं, इसके बेसिस पर या क्या इसको टेस्ट किया जा सकता है, या इसको इंट्रोस्पेक्ट करके निकाला जा सकने के लिए साइकोमेट्रिक के केस में भी देखा था. सो दिस इज अ थियरी विच, यस, देयर इज अ टेस्ट अवेलेबल, वी कैन टेस्ट. लेकिन आज हम उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं. आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि आखिर ये मल्टीपल इंटेलिजेंसेस होते क्या हैं और होते कितने हैं. यूजुअली दे आर ऑफ 8 टाइप्स. अभी दे आर ऑफ 8 टाइप्स बोलने के बाद, oh yes, yeah, I have got 2 questions. Yes. Okay. Yeah. So they are saying, one of the viewer is saying that my son is good in sports. So which type of intelligence he will belong to? So I think yes, I was just discussing the same, that there are 8 type of intelligences, and out of this I think your son will belong to kinesthetic or bodily type of intelligence. Now roughly अगर इसमें देखें तो people are very much interested in doing something or the other activity when we are talking about kinesthetic type of intelligence. Usually they express their emotions with hand movements, because they continuously want to move from one part to other, or they usually dance, they act, they play sports and whatnot. अभी ऐसे टाइप का जब बच्चा होता है तो उसके लिए हमें एक्टिविटी क्या देनी चाहिए या करनी चाहिए. सो यूजुअली हमने देखा है कि ऐसे टाइप के बच्चे जो होते हैं ना, दे यूजुअली स्क्वीज द बॉल. जो स्ट्रेस बॉल आता है ना, उसको स्क्वीज करते हैं. देन यूजुअली दे वॉक व्हेन दे रीड. इनको क्या एक्टिविटी में बिजी किया जा सकता है? सो यू कैन आस्क देम टू प्ले अ स्किट और समथिंग लाइक दैट. Career they are good for, they can be an athlete, they can go into dramas, then and they can be a physical therapist and paramedicals and all this. So
ये जो प्रोग्रेशन है या ये जो हम पहचान रहे हैं अपने बच्चे को, ये एक बहुत अर्ली स्टेज से अगर वी आर ऑब्जर्वेंट, if we are an observant parent, then we can observe this when our child is in the developmental stage. So hope some answer I have given. uh, yes. Okay, one more question is there. Very important question. Or let us talk about the next question. They are asking बाकी के intelligence types क्या होते हैं? तो बाकी के intelligent types, for example, if I can give you an example, then interpersonal. Interpersonal क्या होता है? Basically, these are in one line. If I have to define, I'll say that these are people smart. ये जो लोग होते हैं जिनकी इंटरपर्सनल स्किल अच्छी होती है, दे आर पीपल स्मार्ट. पीपल स्मार्ट का मतलब हमने देखा है कई बार हमारे आसपास बच्चे खेल रहे होते हैं एंड मदर वॉक्स इन. सो अ चाइल्ड, सपोज 2 चिल्ड्रन आर देयर इन द हाउस, वन ऑफ द चाइल्ड सेज, क्या बात है मम्मी, आज मूड अच्छा नहीं है क्या? These are the people who have got very good interpersonal skills because they can identify the moods, the desires, the motivations of the people around them. So one more intelligence type. The second is linguistic or verbal intelligence types. These people are very good at playing with words. And the career type, nothing much to describe it because we all understand हम लोग क्या कर रहे हैं. So these people usually have their careers in journalism. They are good speakers, they are good public speakers, very good public speakers, they are poets sometimes. So these are the career options or career choices. Now one more is musical or rhythmic. अब बच्चे में एक प्रकार का रिदम होता है, वो कुछ भी चीज करेगा ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज वॉकिंग इन और ही हैज टू गो आउट टू प्ले, देन ही विल राइम समथिंग, mom, can I go today to play, something like that. So we immediately can identify this kid is rhythmic or is having a musical inclination. और ऐसा नहीं है कि एक चाइल्ड के पास में सिर्फ एशियन या एक ही टाइप का इंटेलिजेंस होता है. इट्स ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 टाइप ऑफ इंटेलिजेंसेस. एक और इंटेलिजेंस जो बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड होता है, विच इज कॉल्ड एज मैथमेटिकल और लॉजिकल इंटेलिजेंस. ये जो लॉजिकल या मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है, ये मिसअंडरस्टूड होता है. देखिए, एक क्वेश्चन मुझे एक व्यूअर ने भेजा है. दे आर सेइंग कि मेरा बच्चा म्यूजिक में बहुत अच्छा है और साथ ही साथ मैथ्स में भी बहुत अच्छा है. म्यूजिक तो एक आर्ट्स का सब्जेक्ट है और मैथ्स भी एक साइंस का सब्जेक्ट है. सो व्हाट शुड आई डू? सो यूजुअली ऐसा बहुत बार देखा गया है कि ये दोनों इंटेलिजेंसेस रिलेटेड होते हैं, म्यूजिकल इंटेलिजेंस और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस. बाय चांस दोनों एम से शुरू होते हैं, लेकिन बोथ ऑफ देम आर रिलेटेड इंटेलिजेंसेस. बहुत बार जब एक बच्चा इन दोनों में से एक इंटेलिजेंट होता है तो दूसरा का फ्लेयर उसके पास ज्यादा अच्छा होता है, म्यूजिकल अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी होती है. मैंने बहुत बार ऐसे देखा है कि स्पेशली आईआईटीज में जाने वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो बच्चे बहुत बार म्यूजिक में भी बहुत अच्छे होते हैं. And as layman we are not understanding it properly that हम लोग हमेशा ये बोलते हैं कि मैथ्स अच्छा है, ये साइंस में अच्छा है, फिर ये म्यूजिक में क्या कर रहा है. बट नॉट नेसेसरीली दैट ही विल डू हिज करियर इन म्यूजिक, बट यस ही हैज गॉट दैट फ्लेयर, ही हैज दैट नैक फॉर म्यूजिक. ऐसा होता है. और इसीलिए, और ये इंटेलिजेंस मिसअंडरस्टूड है. व्हाई आई से दिस? बिकॉज मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जो है ना, वो लॉजिक, जैसा हमने कहा, तो नॉट नेसेसरीली कि एक न्यूमेरिकल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है वो ये इंटेलिजेंस बताता है. तो ये क्या बताता है? दिस शोज calculation. This shows more than that, much more than that. It showed excellent reasoning skills. बहुत अच्छी रीजनिंग स्किल्स होती है, एब्स्ट्रैक्ट थॉट बहुत अच्छी होती है, और एबिलिटी टू इन्फर, इन्फ्रेंस जब हम निकालते हैं किसी चीज का, तो एबिलिटी टू इन्फर इनके पास बहुत अच्छी होती है. और बेस्ड ऑन पैटर्न्स, स्पेशली जब इनके लाइफ में या आसपास के इंस्टेंसेस में जब इनके सामने कुछ पैटर्न्स आते हैं, तो उसको इन्फर करना इन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है. और उसके बाद जो है, कैटेगराइजेशन में बहुत अच्छे होते हैं ये लोग, पैटर्निंग, रिलेशनशिप बिटवीन द आइडियाज.
अब इसके लिए जब हम करियर पाथ के बारे में सोचना शुरू करते हैं ना, तो बहुत बार एक बहुत ऑफबीट पाथ, या जो यूजुअली लोग सोचते नहीं है वो पाथ इस तरह के लोगों के पास आता है, या इस तरह के लोग परस्यू करते हैं बाद में, दैट इज डिटेक्टिव। क्योंकि इफ वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द एबिलिटीज हमने जो अभी डिस्क्राइब किया, एक्टिविटीज जो हमने डिस्क्राइब किया, तो उसमें रिलेशनशिप बिटवीन द आइडियाज जो है शेरलॉक होम्स स्टाइल में, उस तरह का लगाने का एबिलिटी है मैथमेटिकल या लॉजिकल लोगों के पास होता है, और इसलिए दे मे बी गुड डिटेक्टिव्स आल्सो। सो दिस वाज वन ऑफ द थिंग्स आई यूजुअली try to explain, they try to see to that musical and mathematical abilities or intelligences are related due to a single thing, that they have got similar thinking process. ये दोनों चीजों में ऑलमोस्ट सिमिलर थिंकिंग प्रोसेस लगती है। अब दूसरा एक और इंटेलिजेंस जिसके बारे में बात करने के लिए मुझे एक व्यूअर ने कहा था कि मेरा बच्चा बोलता है कि मुझे आर्किटेक्ट बनना है, तो उसके पास कौन से टाइप का इंटेलिजेंस होना चाहिए, या कौन से टाइप का इंटेलिजेंस उसको शो करना चाहिए। देन आई ऑलवेज से दैट इट वुड बी विजुअल और स्पेशल इंटेलिजेंस, स्पेस में मीन्स 3D, एवरीथिंग अबाउट 2D, यूजुअली 3D वगैरह में उसको इमेजिनेशन पावर अच्छी होनी चाहिए। एंड इन लोगों को हम कहते हैं पिक्चर स्मार्ट। दीज पीपल आर पिक्चर स्मार्ट, और इनको मैन्युफैक्चरिंग इमेजेस हो गए, या उसके बाद हो गई स्पेशल रीजनिंग्स हो गए, ये सब में ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। जब ये खाली बैठते हैं ना, तो यूजुअली ये ड्रॉ करते हैं कुछ ना कुछ, ये भी एक इनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है। और डे ड्रीमर्स होते हैं बहुत बार। देन दे आर गुड एट पजल्स, दे लव मेजेस, दे लव पजल्स। और इन आर्किटेक्चर के साथ ही में ये और क्या क्या कर सकते हैं, बहुत बार ना पायलट और सेलर्स के साथ में भी ये वाला इंटेलिजेंस देखा जाता है, बिकॉज यू नो दे हैव टू थिंक इन 3D, दे हैव टू विजुअलाइज व्हाट मे हैपन नेक्स्ट। सो विजुअलाइजेशन कैपेसिटी इन लोगों के पास बहुत, तो थोड़ा ऑफ बीट जाकर पेंटर वगैरह तो ऑब्वियसली यस, इनका एक बहुत बड़ा फीचर है ही इन लोगों का। अब हम और क्या क्या देख सकते हैं, हमें कुछ क्वेश्चंस आए हैं कि I have got two kids, and out of the two kids, one always goes out for a play, and one is always sitting in home and thinking about something, and he usually is not thinking in the line of his age. That means she's saying that her kid is 10 years of age, and continuously he is asking some questions which we are not able to answer for. तो अभी इनका लेवल ऑफ कौन से इंटेलिजेंट टाइप में फॉल करेंगे इनके बच्चे। सो बड़ा वाला जो है, ऑब्वियसली वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट ही मे बी अ काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस kid, but one would be an intrapersonal intelligence. He must be having some intrapersonal intelligence. Now there is a difference between interpersonal and intrapersonal. Interpersonal we have already discussed. What do you mean by intrapersonal? Sometimes these people are misunderstood as shy people because they don't talk much. फिर ये कहाँ खोए हुए रहते हैं, तो इनको बहुत बड़े बड़े सवाल रहते हैं मन में, एंड देन यूजुअली दे डू इंट्रोस्पेक्शन, एंड देयरफॉर द प्रेफर्ड चॉइस, इनको क्या बनना रहता है आगे जाके, तो बहुत बार साइकोलॉजी ये सब्जेक्ट, दे लव साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, दे आर फिलोसफर्स, yes they, and sometimes religious readers also. तो religious leaders के पास, philosophers के पास ये वाला streak बहुत अच्छा होता है, good leaders, good philosophers they are, and therefore the major type which is coming into play is intrapersonal here. Now, so one more intelligent type which is seen, which was previously seen, मतलब previously इसका importance ज़्यादा था कि जब हम नेचर के साथ रहते थे, वी यूज टू डू हंटिंग एक्सेट्रा, गार्डनिंग, एग्रीकल्चर, यही प्राइमरी सोर्स हुआ करता था हमारा। दैट टाइम ऐसा एक इंटेलिजेंट टाइप होता है। ये लोग क्या करते हैं, दे आर वेरी गुड टू रिकॉग्नाइज द फ्लोरा एंड फौना अराउंड देम।
कौन सा फ्लोरा है, कौन सा फौना है, मतलब कौन से टाइप्स हैं प्लांट्स के और एनिमल्स के उनके आसपास। तो एक्टिविटीज जो ये इन लोगों को अच्छी लगती हैं वो है एग्रीकल्चर हो गया, फार्मिंग हो गया, इन टाइप के एक्टिविटीज या बायोलॉजिकल साइंसेस। इन लोगों से आप कभी भी पूछेंगे व्हाट डू यू लव, यूजुअली दे विल लव लाइफ साइंसेस और बायोलॉजिकल साइंसेस, दैट विल बी देयर प्राइमरी थिंग इन देयर लाइफ। तो कुछ 8 टाइप के इंटेलिजेंसेस होते हैं जिनके बारे में आज हमने बात किया। शायद कोई और क्वेश्चन रह गया है, एट व्हाट एज वी शुड डू द एनालिसिस। So for this, the multiple intelligence is meant to be done till 7th standard, because from 8th standard onwards we could or we can do our psychometric analysis. But till 7th standard, if you at all want to identify, जैसे हमने पहली कहानी में देखा था कि रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, हम लोग जब ट्रायल एंड एरर मेथड से अपना वोकेशनल या अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं अपने बच्चे का, तो हम उस वक्त अगर मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट कर लें देन वी कैन जीरो इन। क्योंकि क्या होता है, हम बच्चे को कराटे में भी डालते हैं, ड्राइंग में भी डालते हैं, वैदिक मैथ्स भी पढ़ने के लिए भेजते हैं, और उसके बाद अगला क्वेश्चन ये होता है कि ये ट्रायल एंड टेस्ट कितने टाइम के लिए करना चाहिए। अगर मैंने उसको भरतनाट्यम के क्लास में डाला है या मेरा लड़का बोलता है कि मेरे को सालसा करना अच्छा लगता है, मैं हिप हॉप सीखूंगा, तो मेरी लड़की बोलती है में बैले डांस, तो ये हम कब तक इसको टेस्ट करने का टाइम पीरियड दे सकते हैं। मीन्स कैन वी कंटिन्यू दिस फॉर 6 months एंड से ओके इट्स नॉट माय कप ऑफ टी एंड कम आउट ऑफ इट, और फॉर हाउ मच टाइम वी शुड बी डूइंग दैट। सो ऐसा जब कभी कंडीशन आता है कि मल्टीपल लेवल पर वी हैव टू टेक अ डिसीजन, then we can go for this test, which it's a very good battery developed by psychologists internationally. And this battery tells you about the multiple intelligences which you have in your kid, and then you can move forward with this. So this is the type which one more aspect of small kids, whereby you can do the trial and method, or you can then go to science and take the help of it, and then try to zero in which type of vocation or which type of thing he or she loves for. So that was the question. One or two questions more I have got, which are related to a topic which I'm going to cover yesterday. Yes, so I remembered that looking at this question, this topic, one of my viewers has asked this is what to do after I take biology. I love biology, but I don't want to pursue other subjects along with biology, that is physics, etc. I don't like physics. So what are the career options in biology? So yes, handling this topic today. So I'm declaring the topic that tomorrow in our live session we will be handling this particular topic of careers in biology. That will be the heading for tomorrow. So tomorrow I'll be taking this topic. Let me brief you, although not for today, but still we can brief that. If not, medicine. क्योंकि बहुत बार लोगों का क्वेश्चन होता है, I love biology but I don't want to become a doctor. What to do? So many areas are there which we will elaborate tomorrow definitely. But yes, you can go for microbiology, biotechnology, some specific type of these things are there, careers are there related to biology, which can be taken, always taken, and we will discuss definitely that tomorrow. और भी कुछ ऑफबीट करियर्स जैसे मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी एक आजकल है. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मैथ्स एज वेल एज बायोलॉजी, then you can go for biomedical engineering, which is a good field nowadays. Okay, so yes, we can search for any other questions. Yeah, one more question I have got. Let me see which question I would be taking the next. Just a minute. Dancing and acting will come under which type of intelligence? Yes, kinesthetic intelligence. So I'll be taking a say rapid fire now. Maybe we can take a rapid fire with these many questions regarding the career options which can be taken for this. I will go for a rapid fire. Physical therapist, kinesthetic. Then mathematician and scientist, mathematical, obviously.
Music composer, yes, musical, rhythmic, this thing. Then game designer, puzzle designer. One more option, one person has asked me, puzzle designer. So puzzle designer will go into special, that is visual. So he will or she will love the making of a puzzle or making of a maze. Yes. What next? Sailor. Sailor will again go into बहुत सारे questions visual ही आ रहे हैं मेरे पास. Sailor will again go there. Scientist will go into mathematical. Mathematician will go into mathematical. Then a person who loves to do skits, yes, he'll be going to bodily or kinesthetic. Yes, very rightly said. Sports will go to kinesthetic again. Then what next? What next? What next? One more I'll take for today. Yes, shoot, teaching. Yes, you can have teaching in which type of field. You can teach anything and everything, but you want bodily movements, you can go for kinesthetic, you can go for interpersonal, because these people, they are people smart, they can identify the moods. So if you want to become a good teacher, your interpersonal abilities do matter. Poet, verbal. So I think it was a nice rapid fire round for me. It was a surprise as well, but yes, I got to know or got to do good things. So with this, we close with today's. Thank you for joining in. And as I have already declared that tomorrow's topic will be careers related to biology. Do drop in your questions. My WhatsApp number is 9011014032. My email ID is flashing. That is mckelkar@gmail.com. You can always drop in your questions there. As well, you can drop in your queries on my WhatsApp number and as well on my Facebook. Dhanyavad.